Hello, welcome to the new session of your computer. And today the topic is World Wide Web. Okay. In my last lesson, I have already dictated you and told you, introduced the definition of World Wide Web. And now the question is that when was web introduced and who introduced the World Wide Web? Okay, it was introduced in 1989 and it's abbreviated as WWW. And who developed it and who introduced it? It was developed by Tim Berners-Lee. He was working at European Laboratory for Particle Physics. Particle physics is one of the branches of physics, and it was the European Council for Nuclear Research. You are seeing this CERN, CERN here, and the CERN, actually this is acronym. Acronym means false abbreviation. E stands for European, C stands for Council, R stands for Research, N stands for Nuclear. तो इस एब्रीवेशन को इन्होंने इधर उधर जम्बल्ड तरीके में लिखा है. तो समटाइम्स एब्रीवेशंस आर रिटन लाइक दिस, ताकि इसका एक ये वर्ड जैसा बन जाए, CERN, CERN. तो उस वजह से इन्होंने CERN लिखा है. अदरवाइज इट शुड बी ECNR, means nuclear sorry, European Council for Nuclear Research. There it was developed by this person, Tim Berners-Lee, and afterwards it got developed, and इसमें बहुत ज़्यादा फिर ये इसको डेवलप किया गया और आजकल ये हमारे सामने बहुत अच्छे इसमें है, फॉर्मेट में है, बहुत अच्छी शक्ल में है, जिसको हम इंटरनेट पे मेनली यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट इज़ WWW comprised of? It is comprised of forums, blogs, groups, databases, and there is email servicing, chatting, instant messaging. IM abbreviated as IM, instant messaging, जो WhatsApp में आपको instantly विद इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो आपके पास मैसेज आती है या जो आप सेंड करते हो या रिसीव करते हो, दैट इज़ द इंस्टेंट मैसेजिंग. तो इसमें वही चीज़ें आ जाती है. सो वर्ल्ड वाइड वेब इज कंसिस्ट्स वर्ल्ड वाइड वेब इन शॉर्टली कंसिस्ट्स ऑफ दीज मैनी थिंग्स. Now attributes of WWW. Attributes means characteristics, means इसमें क्या कुछ खास बातें हैं. Number one is it is user friendly. What do you mean by user friendly? User friendly means ये यूज़र के लिए बहुत ईजी है यूज़ करना. Anybody can use it. Okay, you are saying कि एक छोटा बच्चा भी आज किसी भी वेबसाइट को खोल के कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ से फैच कर सकता है, रीड कर सकता है, समझ सकता है. सो इट इज़ यूज़र फ्रेंडली. नंबर टू, इट इज़ contains multimedia documents. Multimedia documents means there are so many kinds of media. For example, audios are there, videos are there, static videos are there, dynamic videos are there, films are there, images are there, animations are there. So these types of media, many media when combined, they are known as multimedia. So it consists of multimedia. That means it comprises of much number of medias. Then number three is it is interactive. Interactive means we can interact with it. Interaction में मतलब जो भी हम चाहते हैं हम इससे देख सकते हैं. और ये हमें इंटरेक्टिव इसलिए हमारे पास से इंटरेक्टिव फीचर इसका है बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ हाइपरलिंक्स. हाइपरलिंक इज द पॉइंट विच इज ब्लू इन कलर, दैट सेंटेंस और दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स or a single word. Whenever we click on a hyperlink, it takes us to another page. It redirects us to another page. That means अगर आप एक डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हो या अगर आप एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, बीच में अगर आपको वहाँ पे हाइपरलिंक आ रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं पहले इस लिंक में जाऊँ, मैं इस पॉइंट में और डेप्थ में इसके बारे में पता करूँ, दैट मीन्स रीडायरेक्शन. तो आपको उस हाइपरलिंक के रिलेटेड दूसरा पेज खुलता है. एक तो मेन पेज होता है जहाँ से आप कुछ पढ़ रहे होते हो, दूसरा पेज आपको खुलता है. सो यू कैन हैव ए वेरी डीप इंफॉर्मेशन, वेरी डीप नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक. Number three is it supports frames. What are frames? Frames allow us to display more than one independent section on the same web page. जब हम एक ही वेब पेज पे मतलब more than one section हम ये करना चाहते हैं,
डिस्प्ले करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो दैट इज़ शोन इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। एक्चुअली फ्रेम्स के साथ वो ड्रीम वीवर वगैरह जो फ्लैश सॉफ्टवेयर है वो भी फ्रेम्स के साथ ही आते हैं, तो उसमें हम इमेजेस के साथ, वीडियोस के साथ, ऑडियोज़ के साथ, जिसको एडिटिंग भी कहते हैं, तो उसके साथ हम ये उसमें कंसर्न हमारा रहता है। वी वर्क विद दीज फ्रेम्स, सो इट सपोर्ट्स ऑल्सो फ्रेम्स। वर्ल्ड वाइड वेब में फ्रेम्स भी सपोर्ट हो जाते हैं। देन देयर इज हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक तो अभी मैंने डिस्कस किया। एंड व्हाट इज हाइपर text? Hypertext means a world wide web consists of the documents and files. They are written in a language which is known as hypertext. So a hypertext file is a web document that can include उसमें text भी आ सकता है, graphics, images, audio, video, dynamic links और related files, जो भी उसके रिलेशन में फाइलें होती है, जो भी उसके साथ उसके कंसर्न में फाइलें होती है, वो भी आ जाती है उसमें। ओके और डायनेमिक लिंक जो होता है, इसको भी इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपर लिंक, और ये यूज़ हम करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं? टू कनेक्ट वन वेब पेज टू अनदर। इससे हम एक वेब पेज को दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ वेब पेज? सो any page of information, okay, in a website, it is known as web page, but the web page should comprise of hypertext document। क्योंकि हाइपर टेक्स्ट ही वहाँ पे, मतलब जब आपने HTML किया होगा, आपने जो ये टैग्स वगैरह यूज़ किए होंगे, सो दैट टेक्स्ट विच इज़ यूज्ड इनसाइड द वेब इज़ नोन एज हाइपर टेक्स्ट। तो उस वक्त आपने उसी के साथ काम किया होगा, और आपने एक वेब पेज ये डेवलप भी किया होगा, अगर आपने इससे पहले की होगी ये 9th में अगर आपने HTML की होगी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, या 8th में आपने शायद HTML की हुई थी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वेब पेज जो भी पेज पे इंफॉर्मेशन होती है हमें वर्ल्ड वाइड वेब में, दोज पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर नोन एज वेब पेजेस। Okay, then there is web browser. What is browser? Browser is an application which is used to access or retrieve information or resources from the internet। जब भी हम इंटरनेट से कोई एप्लीकेशन के थ्रू हम कुछ भी रिट्रीव इंफॉर्मेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, तो जो उस वक्त हम चीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज वेब ब्राउज़र। अब यहाँ पे क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो होते हैं, दे आर आइडेंटिफाइड। हाउ वी कैन दिस आइडेंटिफाई द रिसोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन? It is located by a thing. This abbreviation for that is Uniform Resource Locator. So URL is it is a unique address of each web page। हर एक वेब पेज का एक एड्रेस होता है, और URL में उस वेब पेज का एड्रेस होता है। तो जब हम URL देते हैं, तो रिलेटेड एड्रेस के साथ जो वेब पेज जुड़ा हुआ होगा, कनेक्ट हुआ होगा, दैट इज ओपनड बिफोर अस। सो वेब ब्राउजर्स की हम बात कर रहे थे। देयर कैन बी टेक्स्ट वेब ब्राउजर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, एंड देयर कैन बी ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए विंडो और ए ग्राफिक। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। One of the browsers is this here Google Chrome is shown. Google Chrome is shown here. So you are seeing a web browser here. It is a graphical web browser. So there are some parts of this web browser. सबसे पहले इसमें टाइटल बार होता है, उसमें वेब ब्राउज़र का नाम आ जाता है। then there is back button, it takes you to back. forward button, it will take you forward. reload current page button, अगर आपने कोई पेज लोड किया होगा, फिर उसको दोबारा आप देखना चाहते हो रिफ्रेशिंग के बाद, तो ये इसको रिफ्रेश करके दोबारा लाएगा स्क्रीन पे। होम बटन विल टेक यू टू द अर्लीस्ट पेज विच यू हैव सीन। जो होम बटन जो होता है, ये आमतौर पे डिफ़ॉल्ट होम पेज होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर दिस एट द दिस फ्रंट स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल, you are seeing Google is there. This is the home page. So Google you can find at the top. So similarly home page is the home button is the same thing. It will take you to the home page. Then there is address bar which contains the address of the this browser, and then there is web page viewing area where we can view the web page through this browser. So that area is known as web this page area. Then there is another concept. It is a website.
So what is website? It is a collection of related web pages linked to each other by hyperlinks. जब हम बहुत सारे पेजेस के साथ डील करते हैं और ये कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू hyperlinks, this the resulting thing which comes into play, which comes into action is a website. Okay, so web page are stored, they are stored on different servers. और सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो हर एक नोड की वर्किंग स्टेशन जो होते हैं हमारे, जिस पे इंडिविजुअल यूज़र्स होते हैं, जो उनकी रिक्वेस्ट्स लेता है और जो उनकी रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस करता है, दैट इज़ सर्वर. देन देयर इज़ होम पेज फॉर द सर्वर एंड वेब पोर्टल फॉर द सर्वर. होम पेज मैंने अभी आपको बोला मेन पेज ऑफ द वेबसाइट. एंड व्हाट इज़ वेब पोर्टल? वेब पोर्टल रेफर्स टू अ वेबसाइट दैट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज. एक वेबसाइट जो बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जांपल आपने पोर्टल पिछले दिनों ये स्कूल का पोर्टल, स्कूल की वेबसाइट, स्कूल का पोर्टल, या परसों आपको वो नेशनल ओलंपियाड जो आपने उसके लिए वो छोटे क्लासेस ने अप्लाई किया था, तो वहाँ पे उनका भी एक पोर्टल होगा. सो दीज आर नोन एज वेब पोर्टल्स. देन वेब एड्रेस एंड यूआरएल आई हैव टोल्ड यू. तो यहाँ पे मैं यूआरएल के बारे में आपको थोड़ा सा और बोलूँ कि यूआरएल जो होता है इसमें होता है 4 कंपोनेंट्स होते हैं. तो फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स. एक ऐसा रूल जो हमें बोलता है कि इंटरनेट का डेटा जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस तरह चलेगा, किन रूल्स के हिसाब से चलेगा. दोज रूल्स आर नोन एज प्रोटोकॉल्स. देन देयर इज सब डोमेन, डोमेन नेम एंड डोमेन एक्सटेंशन. तो ये आप यहाँ पे जो ये एड्रेस देख रहे हो, HTTP, this is the protocol. Then www is the subdomain. Then Google is the domain name and .com is the domain extension. ये com जो है extension name है. तो these are the 4 components of a URL. Okay. Then protocol I already told you. Set of rules or standards which govern how the communication or how the data transfer takes place between different computers. Then यहाँ पे कुछ steps हैं कि एक प्रोटोकॉल कैसे काम करता है. तो सबसे पहले अगर हम एक फ़ोन लाइन की एग्जांपल लेंगे, जब हम फ़ोन करते हैं तो हम पहले डायल करते हैं, तो वहाँ से रिसीव हो जाती है कॉल. हम कॉल पे ग्रीट करते हैं अपने फ्रेंड को या अपने कलीग को या अपने पेरेंट्स को, फिर उसको रिप्लाई आ जाता है और कन्वर्सेशन चलती रहती है, कंटिन्यू हो जाती है. और उसके बाद जो कन्वर्सेशन होती है वो ओवर हो जाती है. और उसके बाद कॉलर जो होता है जिसने कॉल प्लेस की होती है, ही और शी डिसकंटिन्यूज द कॉल. उसके बाद वो कॉल को डिसकंटिन्यू करता है. बेटा ये जो है ये 7 स्टेप्स जो मैंने अभी आपके सामने बोले, तो दीज आर द प्रोटोकॉल्स. ओके. तो आप ये भी बोल सकते हो कि फ़ोन लाइन के लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है और किसी भी जगह डेटा कम्युनिकेशन के लिए एक प्रोटोकॉल होता है. सो नाउ इन स्टेप से 7 स्टेप से आपको अच्छे से समझ में आएगा व्हाट द प्रोटोकॉल मीन्स. देन देयर इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP. And again is another protocol which is known as file transfer protocol FTP. तो ये 2 प्रोटोकॉल जो है ये मतलब हमारे डेटा को गवर्न करते हैं कि डेटा किस तरह चलेगा. ओके. तो हर एक URL जो होता है इसका एक सिंटेक्स होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो URL यहाँ पे है, इसमें आप देख रहे हैं HTTP, फिर आप डबल डॉट देख रहे हैं, डबल स्लैश आप देख रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश, दिस स्लैश इज नोन एज फॉरवर्ड स्लैश. देन देयर इज www and then there is dot, then there is Google, then there is dot, then there is com. ओके. एंड देन देयर इज कॉमा. तो ये जो है जब भी आप एक URL लिखेंगे तो इसमें आपको इन ये जो ग्रामेटिकल यहाँ पे है ये सिंबल्स, इनका ध्यान रखना पड़ता है. Then I am going to another this concept here, and it is subdomain. Subdomain, domain name and domain extension. I have already explained these. Let us have a quick look at this table. तो इस टेबल में आपको मैं बोलूँ कि ये जो है टाइप ऑफ वेबसाइट जो है, अगर एक कॉमर्शियल वेबसाइट होगी तो जो इसका डोमेन एक्सटेंशन होता है वो कॉम होता है, और डिस्क्रिप्शन जो होती है इट्स स्पेसिफाइज ए कॉमर्शियल वेबसाइट. कॉमर्शियल मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू कॉमर्स, विच इज़ रिलेटेड टू ट्रेड. ओके. फाइनेंशियल इसके साथ जो डील कर रहा होगा. इसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई होती है तो उसमें जो डोमेन एक्सटेंशन होगा वो ORG होगा. ORG मीन्स ऑर्गेनाइजेशन. और इसी तरह अगर कंट्री स्पेसिफिक होगा
उस वक्त हम कंट्री CO देते हैं और उसमें से ये कोई मतलब ये किसी स्पेसिफिक कंट्री को लोकेट करेगा। और अगर कोई गवर्नमेंट टाइप ऑफ वेबसाइट होगी उसमें हम डोमेन एक्सटेंशन GOV देते हैं। तो इनसे आपको आइडिया आ गया है कि व्हाट इज़ डोमेन एक्सटेंशन, व्हाट इज़ डोमेन नेम। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू वेब सर्वर। Beta, web server is that type of server which is responsible for which is responsible for taking care of all the websites। जो भी websites से उसको ये आ जाता है, ये मतलब रिक्वेस्ट आ जाती है, वो उनको ये सर्व करता है। That is why it is known as server. So a web server can be defined as a package or container that contains a huge amount of information। जो कि जितनी भी रिक्वेस्ट्स उसको आती है डेटा के बारे में, ये उनको रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस कर सकता है। दैट मीन्स जो सर्वर होता है इसमें अपने में इसमें जो इसकी मेमोरी होती है, ये एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला एक कंप्यूटर होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है और इसीलिए ये हर एक यूज़र से, हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर से जो इसको भी रिक्वेस्ट आ जाती है, जो भी कोई इसको रिक्वेस्ट आ जाती है, it can process the request and it returns the user or the this request holder with some information. Then there is hypertext transfer protocol. Just now we have discussed it. HTTP, still this is your homework. And web client means any individual this server. So we can say we can define formally, we can define the web client as the application which communicates with the web server through HTTP। क्योंकि जब भी हम communicate करते हैं किसी सर्वर के साथ, हमें उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होना चाहिए एंड दैट इज HTTP प्रोटोकॉल। तो उसको हम वेब क्लाइंट कहते हैं, उस एप्लीकेशन को जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। ओके, then there is intranet. Intranet means which is inside the this building. It is not that type of internet which is global internet. Intranet is generally used to link different computers in an organization। एक ही organization में जब हमें अलग अलग कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ लिंक करना हो, उस वक्त हम इंट्रानेट उसको कहते हैं। और इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ intra and net। Intra means inside and net means network। Then there is HTML. This is a language and you are already aware about HTML, hypertext markup language। that means कि वेब पेजेस वगैरह जो भी हम इंटरनेट में डेटा लिखते हैं, वेब पेजेस लिखते हैं, जो जिनको हम ये इंटरनेट पे देखते हैं या एक्सेस करते हैं, तो वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, वो HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। Beta, this is the end of this chapter. I have completed your web servers, I have completed your web page and website and web browsers। तो ये एक सब यूनिट था इसका। तो प्लीज़ go through this exercise which is from page number 20 up to 23। इसमें आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ये वहाँ पे आपको सॉल्व किए हुए हैं। And try to write the answers of these questions, and if you feel problem anywhere you can this call me, you can send me a message and I am ready to this to process your requests and I am ready to help you। Thank you for watching. Thank you very much।